स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मैं तो अच्छा हूँ. तो आफ्टर लॉन्ग डेज, आफ्टर लॉन्ग स्pan of time, I am here for giving the different lectures from the different chapters of class 12. So in this new session, a new pattern of teaching methodology will be used here for providing better and better ingredients to you. That means, my dear students, so that you can get score more and more marks in mathematics. So in this modified series, okay, so this series will be the modified series because last year I had uploaded many more lectures, many more videos, because in that time I was new and there may have some technical problems and some actually throwing problems, some actually some method problems, okay, because I didn't know that much regarding this online classes. So in this series, in this session, new session, I will provide more and more knowledge in a very short period of time. Okay, so I will try my best to provide that top-notch quality teaching to you, whatever are being provided by the other online tutors. Okay, so in this series, I am going to start the first chapter as inverse trigonometric function. Okay, inverse trigonometric function. I will not start this relation function chapter because this chapter is very boring. If you want to see this relation function chapters, video was already uploaded last year. You can see these videos. Okay, I will prepare another videos on another modified videos of relation and function chapter. Just wait and watch. Okay, just keep watching the videos, keep watching my channel. You will be provided the things, whatever you want regarding this mathematics subject, you will be provided, no problem. Okay, so from my side, okay, and rest of the things will depend on you. Okay, if you want to score a good marks, then it depends on you. That means how much the importance you are giving to the subject, that depends on you. Okay, so जो inverse trigonometric function, ठीक है, inverse trigonometry छोड़ दो, trigonometry तुम छोड़ो, inverse ये देखो, inverse trigonometric function lecture 1 modified series, ठीक है. तो जो inverse function, सबसे पहले मुझे inverse function के बारे में जानना है. What is inverse function? In this relation function chapter, in the function chapter, the inverse function concept was there. Okay, so you can see the inverse function lectures from the previous videos. Okay, so that was already uploaded, just you can see, and that will be uploaded in future also. Okay, so it is not a very big deal. In class 11 I think you have got the concept of function. Okay, function concept तो आपको मिला होगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से मिला होगा. अभी जो नया फंक्शन होगा, वो जो नया कॉन्सेप्ट, वो होगा इनवर्स फंक्शन. ठीक है, जैसे नॉर्मल फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन f होता है जो a सेट से b सेट की तरफ जाएगा, a सेट से b सेट की तरफ जाएगा. ठीक है, अगर मैं यहां पर एक a सेट लूं, यहां पर एक अगर b सेट लूं, a सेट b सेट, A set में जो एलिमेंट्स हैं, जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड all the concepts regarding function chapter in class 11. Okay, whatever you had, I think you had got many more concepts, many more things in function chapter as well in class 11. So all the values of the first set denoted by x, ये x से आपको डिनोट करना है. जो b सेट में मिलेगा ना, वो क्या होगा, fx होगा. ये होगा आपका क्या, fx. ठीक है, ये क्लास 11 में आप लोगों को मिला होगा. और फंक्शन का नाम क्या है, ये इस फंक्शन का नाम f. ठीक है, इसलिए fx होता है. ठीक है, fx. अगर इसका नाम g होता तो दिस फंक्शन नेम वाज gx. ठीक है, तो ये फंक्शन के नाम के ऊपर डिपेंड करेगा, fx होगा या फिर gx होगा या क्या होगा, ये नाम के ऊपर डिपेंड करेगा. दैट विल डिपेंड ऑन योर गिवन फंक्शन नेम. ओके, तो मेन थीम ये है, द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज
फॉर द फंक्शन मैपिंग, दिस आर ऑल मैपिंग, नो। फंक्शन मैपिंग दो सेट चाहिए, ए सेट और बी सेट। ए सेट में कुछ एलिमेंट्स होगा, बी सेट में भी कुछ एलिमेंट्स होगा। ए सेट में जो एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग एक्स नाम देंगे, और बी सेट में जो एलिमेंट्स होगा उसको मैं एफ एक्स नाम दूंगा, ठीक। जैसे कि मैंने पहले बोला था, ये होता है आपका इनपुट, ठीक है। फंक्शन के लिए ये दोनों ही आपको चाहिए, इनपुट और आउटपुट। मैंने बहुत बार ये चीज डिस्कस किया है। अगर आपको ये जानना है फिर से, तो प्रीवियस लेक्चर जो है डिटेल डिस्कशन वाज देयर, यू कैन सी दैट लेक्चर्स, ओके। आई विल गिव द लिंक ऑल्सो। तो इनपुट आउटपुट सेट, एफ एक्स को बोला जाता है आउटपुट और इसको बोला जाता है इनपुट। तो उसमें मैंने एक चीज डिस्कस किया, आई हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन क्या होता है? ये जो इनपुट वैल्यूज होता है ना, ये जो वैल्यूज एक्स का वैल्यूज है उसको डोमेन बोला जाता है, डोमेन, ठीक है, इसको बोला जाता है डोमेन। और ये जो आउटपुट है ना, आउटपुट को बोला जाता है रेंज। आउटपुट को क्या बोला जाता है? रेंज। अगर तुम्हें पूछा जाए, इफ यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन दैट व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, अगर डोमेन पूछा जाए, देन यू नीड टू फाइंड ऑल द इनपुट वैल्यूज of this particular function, that will be the domain of this function. और range क्या होता है? What will be the output? What will be the output? Just try to figure out these things first. Okay, so what will be the output you have? That will be the range values. Okay, so collection अगर तुम मतलब लोगे, set concept में जाओ, जितना सारा inputs तुम्हें मिलेगा उसका अगर तुम एक set बनाओगे उसको बोला जाता है डोमेन सेट, ठीक है। और जितना सारा आउटपुट वैल्यूज आपको मिलेगा वो सब आउटपुट वैल्यूज मिला के जो आप सेट बनाएंगे उसको बोला जाता है क्या? रेंज सेट। ओके, अंडरस्टूड? अच्छा, तो यहां पर देखो, ये डायरेक्शन क्या है? ये एरो से दिस इज डिनोटिंग द डायरेक्शन एक्चुअली। ओके, तो डायरेक्शन मतलब ऐसे बी के तरफ जाएगा, ऐसे बी के तरफ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो डोमेन क्या होता है? ये होता है। रेंज क्या होता है? दूसरा सेट होता है। अब आओ इनवर्स फंक्शन में। इनवर्स फंक्शन में भी ए सेट और बी सेट रहेगा, ठीक है। ये ए सेट और ये बी सेट, यहां पर एक्स रहेगा और यहां पर एफ एक्स रहेगा। मतलब देखने सीओजेरी वी कैन टेक दिस थिंग्स। अच्छा, ये एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ठीक है। अब कब एफ एक्स नाम कब होगा? जब फंक्शन का नाम जो है वो एफ होगा, तब, है कि नहीं? यही तो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अभी इनवर्स फंक्शन, इनवर्स इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स? इनवर्स मतलब है उल्टा। मतलब पहले तुम ए सेट से बी सेट की तरफ जा रहे थे, नाउ बी सेट से ए सेट की तरफ आओगे, उल्टा आओगे, है कि नहीं? जैसे अगर मैं ये देखो, ये यहां से ऐसे डायरेक्शन मारोगे, एरो का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल फंक्शन, इन द नॉर्मल फंक्शन, व्हेन दिस फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ends to b, okay, this function is the normal function f, but whenever the direction is changed, b set से a की तरफ आ रहा है, that means from b set it is coming to a set, inverse, उल्टा आ रहा है। तब इस फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? f to the power -1, f to the power -1, इनवर्स, ठीक है। पावर नेगेटिव होने से उसको क्या बोला जाता है? इनवर्स। तो f to the power -1 होता है यहां पर इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है? ऐसे सच दैट जैसे लिखोगे, इनवर्स फंक्शन कौन से सेट से शुरू होता है? बी सेट से। किसके तरफ आ रहा है? ऐसे की तरफ। दैट मीन्स यहां पर नॉर्मल फंक्शन में f a to b होता है, बट इनवर्स फंक्शन में वो क्या होता है? b to a होता है। अब एज यू नो, एक्चुअली द सेट फ्रॉम वेयर द फंक्शन स्टार्ट्स, दिस सेट इज डोमेन, ओके, एंड वेयर दैट मीन्स जस्ट वेयर दिस फंक्शन विल बी फिनिश्ड, दिस सेट और दिस प्लेस इज कॉल्ड रेंज। तो ये जो इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन में फंक्शन शुरू कौन से सेट से हुआ था? बी सेट से। दैट मीन्स ये बी सेट होगा नॉर्मल एफ इनवर्स फंक्शन में, ठीक है। ये होगा डोमेन, ये क्या हो जाएगा? डोमेन।
और ये क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये एफ इनवर्स फंक्शन तो है, अब ये जो वैल्यूज है ना एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, दीज आर ऑल डोमेन वैल्यूज, एंड एक्स 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 दीज आर ऑल रेंज वैल्यूज। उसको कैसे लिखते हैं, देखो जस्ट ट्राई टू कंपेयर दिस पार्ट टू दिस पार्ट। ओके, तो यहां पर डोमेन क्या था, एक्स था, फंक्शन क्या था, एफ था, तो आउटपुट क्या मिला तुम्हें, एफ एक्स। यहां पर भी देखो, अगर यहां से शुरू कर दोगे, यहां पर डोमेन क्या है, एफ एक्स, फंक्शन क्या है, एफ इनवर्स, ये क्या है, एक्स। देखो तो इसको हम लोग, अगर मैं ऐसे लिखूं, ये जो एक्स है ना उसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। देखो फंक्शन क्या है, एफ इनवर्स, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स लिखते हैं। यहां पर एक्स की जगह क्या होगा, यहां पर डोमेन वैल्यू, इनपुट क्या है, एफ एक्स है, तो इनपुट लिखेंगे। दैट मींस एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इसको एक्स लिखा जाता है। क्योंकि देखो, अगर ट्राई टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू नीड टू study, you need to learn about the composite function, and this composite function concept is there in the function chapter in class 12. We will discuss it, and if you want to know this composite function, then in the previous lectures, video lecture were already uploaded. Just you can see that lecture. In that lecture, composite functions actually that was discussed very impressively, and very detailed discussion was there. You can see this detailed discussions. Okay. So f इनवर्स और f, देखो ऐसे भी 2 into 2 इनवर्स ऐसे कैंसिल होता है ना, नॉर्मली ऐसे सोचो, नॉर्मली, बट एक्यूरेटली दैट इज नॉट द मेन थिंग। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग लाइक दिस। ओके, 2 into 2 इनवर्स, दैट मींस कैंसिल होता है, आंसर क्या निकलता है, 1। तो यहां पर भी f इनवर्स और f कैंसिल होता है, आंसर क्या निकलता है, x। वो देखो x है ना, x आया ना, दैट मींस ये x को हम लोग कैसे, वी कैन रिप्रेजेंट दिस x बाय f इनवर्स ऑफ fx। ठीक, अगर मैं यहां पर डेफिनेशन लिखना चाहूं, लिखो लेट ए मैपिंग, लिखो ए मैपिंग, लेट ए मैपिंग f inverse such that b to a, then fx belongs to, कहां पर, b में बिलोंग करता है, fx belongs to b, then fx belongs to b, so f inverse of fx belongs to कहां, a, that is ये f inverse of fx मतलब ये f inverse of f कैंसिल होके क्या रहता है, x belongs to a, x belongs to a is called inverse function। मतलब एक नॉर्मल फंक्शन और एक इनवर्स फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इन द नॉर्मल फंक्शन फर्स्ट सेट से सेकंड सेट की तरफ फंक्शन काम करता है, फंक्शन जाता है, ठीक है। बट इन द इनवर्स फंक्शन सेकंड सेट से शुरू होता है, फर्स्ट सेट की तरफ आएगा, उल्टा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ठीक ठीक। इसके लिए सिंस दिस डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, आई थिंक द डोमेन रेंज कॉन्सेप्ट विल ऑल्सो बी रिवर्स्ड। इन द नॉर्मल फंक्शन first set is the domain, second set is the range, but in this inverse function first set will be what, range, second set will be domain, because the function starts from second set, that's why the domain set is the second set, and that will ends with first set, so that's why this second set is called range, first set is called range। तो ये होता है एक नॉर्मल फंक्शन, एक इनवर्स फंक्शन के बीच डिफरेंस। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ओनली इनवर्स फंक्शन। नाउ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन क्लास 11 वी हैड डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, sin, tan, cos, cosec, sec, many more questions were solved, okay। तो अब जो है क्लास 12 में आपको मिलेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अरे ये बड़ा क्या है भाई, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, लेट मी डिस्कस, ओके, क्या है हम लोग करेंगे डिस्कस, है एकदम
सुंदर तरीके से यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं? जैसे नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये ऐसे लिख लो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एक ऐसे लिख लो, और यहां पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से फंक्शन। जैसे पहला फंक्शन हम लोग क्या मिला था, साइन थीटा, तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, अरे भाई साइन इनवर्स थीटा, जस्ट लाइक दैट, इट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एज आई टोल्ड यू, इनवर्स फंक्शन मतलब पावर -1 आएगा, ओके। जैसे ये क्या मिला था, cos थीटा, तो ये क्या होगा, cos इनवर्स थीटा, फिर tan थीटा, ये होगा tan इनवर्स थीटा, ठीक है, फिर cosec थीटा, ये होगा cosec इनवर्स थीटा, फिर sec थीटा, ये होता है sec इनवर्स थीटा, फिर cot थीटा, ये होता है cot इनवर्स थीटा, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग को मिला था क्लास 11th में, वही क्लास 12 में आके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। क्लास 11th में हम लोगों ने ये सब चीज लेके डिस्कस किया था, अब क्लास 12 में ये सब चीज लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्लास 12 का है, क्लास 11th में ये चला गया, दैट वाज पास्ट, and that is present, right? So वो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कंपाउंड एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स, मेनी मोर क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड, ओके। तो उसमें हम लोगों ने ये वाला चीज जो है, कॉन्सेप्ट जो है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे सपोज साइन फंक्शन लेते हैं, ठीक है, साइन फंक्शन, जैसे साइन फंक्शन एक ले लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स, सपोज y इक्वल्स टू साइन एक्स। ये जो है ना, ये देखो, ये x एक्सिस y एक्सिस याद है हम लोगों ने किया था, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, और ये π/2 और ये -π/2, राइट, याद है आप लोगों को? साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, अगर x का वैल्यू 0 डिग्री हो तो साइन 0 का वैल्यू देखो, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द 10th चार्ट, क्लास 10th चार्ट, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो y का वैल्यू भी 0 होता है। कब? जब x का वैल्यू 0 डिग्री होता है। अब x का वैल्यू अगर सपोज π/2 हो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, साइन π/2, देखो x के जगह π/2 बिठाओ, y इक्वल्स टू 1। तो ऐसे ही साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 निकलता है, इसका वैल्यू 1 निकलता है, फिर से यहां पर 0 मिलेगा, फिर से यहां पर आएगा -1 मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस है, ठीक। तो फिर से यहां पर आओगे 0 मिलेगा, फिर से यहां पर आओगे 1, फिर से 0 -1, 0 1 0 -1 0। दैट मींस यहां पर घूमते रहो, दैट मींस यू जस्ट कीप मूविंग, ओके। द वैल्यूज ऑफ sin x विल बी लाइंग बिटवीन -1 and 1, मतलब यहां पर एंगल जो भी चेंज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट द वैल्यूज जो है वो किसके बीच लाई करेगा, -1 और 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। तो अगर एक sin x फंक्शन हो, ठीक है, x का जो वैल्यूज होता है वो डोमेन होता है, ठीक है ना, और y का वैल्यूज जो होता है वो क्या होता है, रेंज होता है, ये रेंज होता है। तो यहां पर x का वैल्यू कहां से कहां तक चूज कर रहे हो तुम, देखो -π/2 से π/2 तक, देखो लोएस्ट ये है, हाईएस्ट ये है, ठीक है। सो ऐसे क्लोज इंटरवल दे दो, और y का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू, sin x का वैल्यू, sin x का वैल्यू किसके बीच लाई कर रहा है, देखो लोएस्ट कौन सा है, -1, और हाईएस्ट कौन सा है, 1, ठीक है, ओके। सो दैट मीन्स जब y इक्वल्स टू साइन एक्स हो तब डोमेन होता है -π/2 to π/2, क्लोज इंटरवल देना चाहिए, और when that means the and range that means the value of sin x
विल बी लाइंग बिटवीन -1 and 1 क्लोज इंटरवल। तो ये होता है sin x फंक्शन का डोमेन और रेंज। अब नाउ trying to discuss the inverse function. Now y equals to sin inverse x. मैंने क्या बोला था? What is the difference between the normal function and the inverse function? Just domain range change हो जाएगा। जो डोमेन था that will be range now. जो रेंज था that will be domain now. Okay? So जब y equals to sin inverse x हो तब डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो यहां पर देखो नॉर्मल फंक्शन ये है, इसमें डोमेन क्या था, ये था, तो ये हो जाएगा भी रेंज -π/2 π/2। ठीक है, और जो ये जो क्या था रेंज क्या था -1 to 1। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये डोमेन हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन में चेंज हो जाता है, जो डोमेन था वो रेंज होगा, जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मींस ये ऐसे एरो देके तुम लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, ये सब लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर मैं यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, ठीक है, जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 0 डिग्री, ये π/2 है, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, ठीक है, फिर 2π, ऐसा चलता रहेगा। ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π, ऐसा चलता ही रहेगा। बहुत सारे एंगल्स हैं, खत्म नहीं होगा, है नहीं। अच्छा, और देखो ये 1 और ये -1। अब साइन फंक्शन है, अब y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब साइन एक्स फंक्शन का देखो वैल्यू तो -1 और 1 के बीच ही लाई करेगा, तो दैट मींस y का वैल्यू है ना, ये देखो ये y का वैल्यू है, तो इसलिए देखो y एक्सिस के ऊपर के साइड +1 ले लो, नीचे के साइड -1 ले लो। ठीक है, अब आओ, जो साइन फंक्शन है, जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का वैल्यू 0 कब निकलता है, साइन फंक्शन का वैल्यू 0 कब निकलता है। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट क्लास 10 चार्ट में जाओ। साइन 0 डिग्री 0, साइन पाई, देखो यहां पर लिखा हुआ है, देखो ये 0 डिग्री मतलब ये पाई होगा, ये पाई है, ठीक है ना। तो साइन पाई क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 0 होता है। साइन पाई कितना होता है, 0। तो फिर से साइन 2π देखो 0 होता है, फिर से यहां पर साइन 3π 0 होता है, साइन 4π 0 होता है, 6π 0 होता है, 7π 0 होता है। ठीक है ना। देखते जो पाई का मल्टीपल्स है वहां पर ये जो फंक्शन है वो 0 होगा। ठीक है, तो पाई का मल्टीपल्स या फिर -π का मल्टीपल्स, तो दैट मीन्स यहां पर साइन फंक्शन 0 होगा, यहां पर भी साइन फंक्शन 0 होगा, यहां पर नहीं, यहां पर साइन फंक्शन 0 होगा, यहां पर साइन फंक्शन 0 होगा। लेकिन जहां जहां पर ये किसका वैल्यू 0 है, किसका वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, साइन फंक्शन का वैल्यू 0 है ना। लेकिन देखो साइन पाई मतलब 0, साइन 2π 0, साइन -π 0, साइन -2π 0। ठीक है, अब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एंगल पाई का मल्टीपल्स हो जाए तो आंसर 0 ही निकलेगा। ठीक है, अच्छा फिर देखो ये जो ग्राफ क्या होता है, देखो सपोज साइन 0 ना, x का वैल्यू जब 0 हो, देखो यहां पर देखो y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये मेन फंक्शन है। अब x का वैल्यू 0 हम लोग ले रहे हैं, y का वैल्यू क्या मिलेगा, साइन 0 मतलब 0। x का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, π/2, y का वैल्यू क्या मिलेगा, साइन π/2, दैट मींस 1। x का वैल्यू पाई ले रहे हैं, y का वैल्यू
साइन पाई दैट मीन्स 0। एक्स का वैल्यू 3 पाई बाई 2 ले रहे हैं, 3 पाई बाई 2, वाई इक्वल्स टू, अब 3 पाई बाई 2 कहां पर होगा बोलो तो, देखो 0 पाई बाई 2 पाई, ठीक है। ये 3 पाई बाई 2 कहां, यहां पर है ना, थर्ड क्वाड्रेंट के ये जो एंडिंग है ये है ना 3 पाई बाई 2, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना ये, तो 3 पाई बाई 2 में वैल्यू देखो कितना है, कितना है -1, दैट मींस वाई का साइन 3 पाई बाई 2 आंसर कितना होता है -1, ठीक है कि नहीं। सो ऐसे ही यहां पर वैल्यूज जो है वो चेंज होता रहेगा, बट वैल्यूज देखो 0 या फिर 1 -1 1 -1 0 1 -1 0 1 -1, ये वैल्यूज ही आ रहा है बार बार घूम फिर के, ठीक है ना। तो देखो अब ग्राफ थोड़ा ड्रॉ कर लें, x का वैल्यू 0, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 0, दैट मींस ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, x का वैल्यू पाई बाई 2, y का वैल्यू 1, दैट मींस ये देखो ये पॉइंट है ना, देखो पाई बाई 2 1, दैट मींस ये पॉइंट। फिर से x का वैल्यू पाई की तरफ आ रहा है, दैट मींस ये x एक्सिस है ना, x का वैल्यू पाई की तरफ आ रहा है, y का वैल्यू किसकी तरफ आ रहा है 0 की तरफ, दैट मींस ये देखो फिर से ऐसा आएगा, ठीक है। फिर से नीचे आएगा 3 पाई बाई 2 में वैल्यू कितना है -1, ऐसा आएगा, फिर से 2 पाई में जाएगा 0 आएगा, तो फिर से ऐसे ही चलता रहेगा, ये सांप की तरह जस्ट लाइक ए स्नेक चलता रहेगा, दैट मींस यहां पर भी -1 होगा। तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है द सेम थिंग विल बी रिपीटेड इन द नेगेटिव डायरेक्शन आल्सो, ठीक है। तो क्या होगा साइन -पाई बाई 2, देखो साइन -पाई बाई 2 वैल्यू कितना है -1 है ना, देखो -पाई बाई 2 में वैल्यू कितना है -1 है, तो जाओ -1 मतलब y का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, देखो x का वैल्यू अगर मैं -पाई बाई 2 पुट करूं, y का वैल्यू क्या मिलेगा -1, तो y का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस नीचे की तरफ आएगा, तो आओ नीचे की तरफ, ये जो है ये -1 होगा, फिर से पाई देखो -पाई 0 की तरफ जाएगा, फिर से ये ऊपर की तरफ आएगा +1 की तरफ आएगा, ये +1, ठीक है, फिर से यहां पर 0 की तरफ आएगा, ऐसे ही ये जो है ना ये ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये है नॉर्मल साइन फंक्शन, ये जो है क्या है नॉर्मल साइन फंक्शन, ठीक है क्लियर, क्या बोलते हो है कि नहीं। अच्छा अब इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, ये तो नॉर्मल साइन फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन में ऐसे कर दो, फिगर को उल्टा कर दो, क्योंकि नॉर्मल इनवर्स फंक्शन में क्या होता है डोमेन और रेंज चेंज हो जाता है ना, डोमेन और रेंज क्या होता है चेंज हो जाता है, दैट मींस ये जो x एक्सिस में जो वैल्यूज आप लोगों ने लिया था वो आ जाएगा अभी y एक्सिस के ऊपर, और y एक्सिस में जो वैल्यू आप लोगों ने लिया था वो आ जाएगा किसके ऊपर x एक्सिस के ऊपर, दैट मींस ये जो फिगर है उसको थोड़ा रिवर्स कर दो, वही हो जाएगा फिगर, ठीक है। तो साइन इनवर्स का लिख लो, साइन इनवर्स फंक्शन का फिगर जो है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x फंक्शन का देख लो, ये x एक्सिस y एक्सिस, सामने वाला जो है वो सब लिखना पड़ेगा, आपको नोट्स ये बनाना पड़ेगा, पॉज करो वीडियो को, पॉज करो, पॉज करके ये सब नोट्स जो लिख लो, ये फिगर्स भी लिख लो, ठीक है। ये तो पॉजिटिव एंगल्स लेके मैंने किया है, नेगेटिव एंगल्स लेके भी आप लोग यहां पर करोगे, ठीक है। जैसे यहां पर पॉजिटिव एंगल्स ने आप लोगों ने लिख लिया है ना, अब नेगेटिव एंगल्स होगा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव दैट मींस ये -1 होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होने से 0 ही रहेगा, ये नेगेटिव होगा तो ये प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये x एक्सिस y एक्सिस, अब इसमें जो है वैल्यूज जो है देखो +1 और ये -1, वो पहले y एक्सिस के ऊपर था, ये अभी चला आया किसके ऊपर x एक्सिस के ऊपर, देखो फिगर में थोड़ा डिफरेंस देखो, और y एक्सिस के ऊपर चला जाएगा ये सब, ये 0 डिग्री, फिर पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, ठीक है, फिर 2 पाई, ये आ जाएगा -पाई बाई 2, पाई, -3 पाई बाई 2 और -2 पाई, ठीक है ना।
तो फिगर कैसा होगा, ऐसे जस्ट लाइक स्नेक, स्नेक की तरह ही होगा। पॉजिटिव में कैसा गया था, देखो ऐसा आया था ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो साइन इनवर्स में देखो पहले क्या था, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या मिला था 1, देखो लिखा हुआ है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू π/2, y का वैल्यू 1 मिला था, इसलिए ऊपर की तरफ गया। यहां पर भी सेम, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0, दैट मींस ये पॉइंट। फिर x का वैल्यू, ये y का वैल्यू π/2, x का वैल्यू क्यों मिलेगा 1 मिलेगा ऑब्वियसली। ये फिर से पाई में 0 आ जाएगा, हो गया। 3π/2 में -1 आएगा, बहुत को नीचे की तरफ आ गया, दैट मींस ये नेगेटिव एक्सिस इसके आ गया, देखो -1, ये -1 है ना इस साइड में, तो ये इस साइड में चला गया। फिर 2π में 0 हो जाएगा, फिर जितना जाओगे इधर +1, एक बार -1, +1 -1, +1 -1, ऐसा होता रहेगा ऑल्टरनेट वेज में, ठीक है। तो ये है आपका साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का फिगर। यहां पर भी देखो ना ऑल्टरनेट है, पहले ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ, जस्ट लाइक स्नेक। यहां पर भी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स का फिगर, ठीक है। तो ये आपका साइन इनवर्स। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग कोसेक का करेंगे, ठीक है। y इक्वल्स टू कोसेक x, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x, y इक्वल्स टू कोसेक x, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x, ये वाला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट मींस यहां पर जो है, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोसेक इनवर्स x का करेंगे, ठीक है। तो जो मेन चीज ये है, इफ यू हैव अ नॉर्मल फंक्शन, अगर एक नॉर्मल फंक्शन हो, नॉर्मल फंक्शन में जो इनपुट वैल्यूज होता है वही होता है डोमेन, जो आउटपुट वैल्यूज होता है वही होता है रेंज। बट इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, इनपुट वैल्यूज जो है डोमेन होता है, बट सेट चेंज हो जाता है, सेकंड सेट हो जाता है यहां पर डोमेन, और फर्स्ट सेट हो जाता है यहां पर क्या, रेंज, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, not a big issue. I will try to sort out all the problems, and whatever the queries you have, I will try to solve all the queries. Okay? तो जस्ट ये याद रखना, sin x फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक स्नेक होता है, ठीक है। और कहां कहां पर 0 होगा, जब 0 डिग्री में, पाई में, 2π में, 3π में, 4π में 0, -π, -2π, -3π, -4π, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पाई का जो मल्टीपल्स हैं उसमें 0 आएगा, दैट मींस एक्स एक्सिस को टच करेगा। और जो बीच बीच में है उसमें या फिर +1 या फिर -1, जैसे देखो 0 और पाई के बीच +π/2, ऊपर की तरफ +1 आ गया। फिर पाई और 2π के बीच 3π/2 है, वो नीचे की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ, फिर से नीचे तरफ, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसा चलता रहेगा। नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, +1 या फिर -1, +1 या फिर -, दैट मींस the values of sin x fluctuating between -1 and 1. Okay? So आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, stay safe and stay healthy. Bye and जय हिंद।